and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss one of the most important topic: reservation in appointments, central government job. So, my friends, please subscribe my channel, share my channel, and like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Also, you share my channel, definitely it will be beneficial for others. And this topic is very important one. So with patience, try to listen everything. If you want to collect uh, overall information about reservation in appointments, basically in central government job. Okay, now I am going to start. First of all, you see reservation in direct recruitment, in open competition and otherwise done by open competition. एक open competition होता है, वो open competition exam is there. So it is clearly given in the matter of appointment by direct recruitment to civil post and civil services on all India basis by open competition. Basically open competitive exam, organized by UPSC, Union Public Service Commission, whether through written examination or by interview or by both. And recruitments made by other authorities including Staff Selection Commission or any other appointing authority through written competitive examination or test, but not by interview alone. You know that many exams, very top exams conducted by UPSC, Central Staff Selection Commission or any other appointing authority, it is open for all. Direct recruitment, written examination is there, and then viva is there, right? So in that matter, it means how can we detect the reservation in open competitive examination? You see, reservation category it is given, reservation quota, scheduled tribe 7.5%, scheduled caste 15%, OBC 27%, or economically weaker sections, EWS, economically weaker sections, basically they are getting reservation from the UR category, general category, it is 10%, to total 59.5%. जो भी ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहा है, ओपन एग्जामिनेशन हो रहा है, वहां पर जो रिजर्वेशन के कैटेगरी इस तरीके से है, ठीक है. अभी EWS भी इंक्लूड हुआ है, तो बेसिकली फ्रॉम जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आल्सो दे आर गेटिंग रिजर्वेशन. अभी हम थोड़ा EWS कोटा के ऊपर देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, so it means what are the criteria? First one, it is given, provides reservations to the general category of financially weak people. Financially weak people belongs to general category. Family's income should be less than rupees 8 lakhs. So annual income should be less than rupees 8 lakhs. Sources of income may be from agriculture, business and other professions. Less than 5 acres of agricultural land. Another condition, agricultural land, it means possession of agricultural land must be less than 5 acres. Residential flat should not be 200 square meters or more. Okay, if a residential flat is more than 200 square meters, it should not come under the municipality. तो ये सब conditions है. तो जनरल कैटेगरी से हम जो EWS, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को डिटेक्ट करते हैं, ये सब क्राइटेरिया है. Their family income must be less than rupees 8 lakh per annum. Sources of income may be from agriculture, business and other professions, and they possess less than 5 acres of agricultural land. Basically residential flats should not be more than 200 square meters. If they possess more than 200 square meters land, then residential flat, it should not be in the municipal area. So these are the EWS quota conditions, right? Next one, in the matter of appointment by direct recruitment to civil post and civil services on all India basis, otherwise done by open competition. Suppose the limited departmental competitive examination is there. Okay, LDC, limited departmental competitive examination, LDC exam is there. Basically in department, now competitive examination is there. So among the staffs, actually basic, it means suppose
मिनिमम ईयर्स जॉब, क्वालिफिकेशन, ये सब देता है। तो एलडीसी एग्जाम कंडक्ट होता है। तो इसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी है ये बेसिकली टोटल 50% रहना चाहिए। ओके, इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू सिविल पोस्ट एंड सिविल सर्विसेज ऑन ऑल इंडिया बेसिस अदरवाइज देन बाय ओपन कंपटीशन। बेसिकली आप ये कर लो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ST 7.5 शेड्यूल का 16.66, ओबीसी 25.84, टोटल 50%। 50% से रिजर्वेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर SC देखिए, ST तो सेम है, SC 16.66, ओबीसी 25.84, तो तीनों को ऐड कर दीजिए 50% हो रहा है, राइट। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। चलो नेक्स्ट पार्ट चलेंगे। नोट यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। 3% ऑफ सीट्स आल्सो रिजर्व फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। तो बेसिकली जो हैंडीकैप्ड है कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, ऑल कैटेगरीज में जितना सीट्स के लिए एग्जाम होगा उसका 3% सीट मस्ट बी रिजर्व बेसिकली फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिए। द रिजर्वेशन पॉलिसी इज ऑल्सो एनफोर्स्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फॉर रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन पार्लियामेंट। नाउ यू नो SC and ST also, it means their category in proportionate manner they must represent in the Indian Parliament. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के ऊपर है, ये 103rd अमेंडमेंट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है। तो आर्टिकल्स 15 सबसेक्शन 6 and Article 16 subsection 6 of the Constitution of the India, it is amended to permit 10% reservations to the EWS category students among the unreserved category or general category students। ये दिया है EWS जैसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, तो ये भी रिजर्वेशंस जो 10% रिजर्वेशंस है, ये 1/3 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मेंबर्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBC जो क्लास है वो क्रीमी लेयर है, वो फॉल इन क्रीमी लेयर, वो उनको रिजर्वेशन में नहीं मिलेगा, उनको शैल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए पॉइंट को। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वेयर रिक्रूटमेंट इज मेड फॉर जोन्स और सर्कल्स और रीजियंस कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन स्टेट। जैसे ग्रुप सी, जो GC&D पोस्ट, ग्रुप C&D पोस्ट ओनली। वेयर रिक्रूटमेंट इज मेड फॉर जोन्स or circles or regions consisting of more than one state, the percentage of reservation for SCs and STs is generally fixed। देखिए generally fixed on the basis of proportion of SC and ST in the respective zones, circles, regions and reservation of OBC। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोर देन वन स्टेट एक जोन होता है कि सर्कल है कि रीजन है, जैसे ग्रुप C&D पोस्ट के लिए जब रिक्रूटमेंट निकलता है, तो वहां पर जो रिजर्वेशन SC ST के लिए रहेगा, वहां पर हम देखेंगे कि उनका प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन क्या है, उनका प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन के हिसाब से एक्चुअली उनका रिजर्वेशन रहेगा SC and ST के लिए। अभी देखेंगे OBC तो वही फिक्स रहेगा, रिजर्वेशन फॉर OBC इज फिक्स्ड, ओके, कीपिंग इन व्यू देयर प्रोपोर्शन इन द पॉपुलेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव। फिर हम देखेंगे OBC के लिए जो रिजर्वेशन तो 27% है, मगर वहां पर हम प्रोपोर्शन को देखेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, मगर यहाँ पर जो टोटल रिजर्वेशन होगा SC ST OBC वो 50% से ज्यादा नहीं होगा। ओके, 50% से ज्यादा नहीं होगा, मगर आपको यहाँ पर याद रखना है, यदि मोर देन वन स्टेट में कोई रिक्रूटमेंट हो रहा है, ऐसा जोन से कि सर्कल से कि रीजन से, वहां पर जो SC ST OBC कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन रहेगा, वो बेसिकली वी मस्ट चेक द पॉपुलेशन ऑफ SC। ओके, पॉपुलेशन ऑफ SC उसको देखकर कितना, हाउ मच परसेंटेज ऑफ SC इज देयर, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ST इज देयर, या हाउ मच परसेंटेज ऑफ OBC इज देयर। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजर्वेशन इज फिक्स्ड। ठीक है, और ये जो रिजर्वेशन रहेगा तो वो 50% से ज्यादा नहीं होगा रिजर्वेशन। अभी यहां पर देख लीजिए इलस्ट्रेशन दिया है। सपोज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ए ग्रुप C पोस्ट in an organization is made on the regional basis for the regions consisting of the 8 states of Northeast। Northeast जो 8 states है, बेसिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्रुप C पोस्ट के लिए वो अभी रिक्रूट कर रहा है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। तो यहाँ पर देखिए जो SC है प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन, प्रोपोर्शनेट ऑफ SC 6.39% एंड शेड्यूल्ड ट्राइब है 26.93%।
ठीक है। एंड एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द रीजन इज मोर देन, जो एबीसी है मोर देन 27% है। जो एससी कैटेगरी है 6.39% है, ये जो 8 स्टेट्स में, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स है 26.93%, और ओबीसी मोर देन 27% है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन कैसे फिक्स होगा? जैसे 6.39 मीन्स एससी 6% रहेगा, ठीक है, एससी 6%, क्योंकि 6.39 है, और एसटी कितना है 26.93 मीन्स 27% रहेगा। बाकी तो जो तीनों मिलाकर एससी एसटी ओबीसी तीनों मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं होगा। जो बाकी होगा ओबीसी यहाँ पर बेसिकली 17% हो जाएगा, तो 50% हो गया। अब देख लीजिए, तो इसके हिसाब से देखिए, तो बेसिकली प्रोपोर्शनेट ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर रिजर्वेशन फिक्स होता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक यहाँ पर दे दिया, इन द केस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन, ये जब ये जो रिक्रूटमेंट होता है कि लोकल रीजनल जोनल सर्कल बेसिस, तो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स नॉट बिलोंगिंग टू द कंसर्न लोकेलिटी रीजन, सपोज वो एससी एसटी ओबीसी पीपल वो एक्चुअली वो रीजन वो लोकेलिटी वो स्टेट वो जोन से बिलोंग नहीं करते हैं, क्या वो एलिजिबल है कि नहीं? वो भी एलिजिबल है, शैल ऑल्सो बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। जो एससी एसटी पॉपुलेशन है वो सपोज फॉर एग्जाम्पल ये 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रहते हैं, सो दे डू नॉट बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, बट दे गेट रिजर्वेशन। ये जो रिक्रूटमेंट होता है ग्रुप सी पोस्ट के लिए कि ग्रुप डी पोस्ट के लिए, ये रिजर्वेशन जैसे मिलता है उनको भी वैसे ही मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ठीक है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन को देखेंगे तो वही रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड एट 15% फॉर शेड्यूल कास्ट, 7.5% फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो प्रमोशन जो है, अभी जो प्रमोशन हो रहा है 3 प्रकार का प्रमोशन है, एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और एक है सिलेक्शन, और एक है नॉन सिलेक्शन। तो एक है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ग्रुप बी सी एंड डी, ओके, ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी, और एक है प्रमोशन बाय सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? अप्राइजल, सपोज अपर एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट को देखकर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, आपको क्या क्या ग्रेड मिला है, और उसी ग्रेड से आपका क्वालिटी को चेक किया जाएगा, और उसके हिसाब से एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, वो सिलेक्शन है अपर के हिसाब से, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट के हिसाब से। और एक नॉन सिलेक्शन में प्रमोशन है सीनियरिटी बेसिस में, जो नॉन सिलेक्शन है सीनियरिटी बेसिस में होगा। तो 3 वेज में, एक है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, और एक है सिलेक्शन है, जो सिलेक्शन एक्चुअली आपका अप्राइजल, जो एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट में जो ग्रेडिंग मिल रहा है उसके हिसाब से जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी ग्रेडिंग करेगा, और एक है नॉन सिलेक्शन। नॉन सिलेक्शन मीन्स जो है सीनियरिटी बेसिस में होगा। नॉन सिलेक्शन वो बेसिकली जो आपका सीनियरिटी है, लेंथ ऑफ द सर्विस है, वो उसके हिसाब से होगा। तो रिजर्वेशन इन पोस्ट यहां पर दे दिया क्लियरली, देखिए, रिजर्वेशन इन पोस्ट बाय प्रमोशन as indicated above should be made applicable to all grades or services in which the element of direct recruitment if any does not exceed। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट माने डज नॉट एक्सीड 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा वो 75% से ज्यादा नहीं होगा, तो उस केस में प्रमोशन होगा। और प्रमोशन में एज यूजुअल वैसे ही एससी को 15% और प्रमोशन में एससी को 15% और एसटी जो है 7.5% और जो ओबीसी है वो 27% ऐसे आएगा। तो बेसिकली ये जो हो रहा है 49.5 है, 49.5 आ जाता है रिजर्वेशन, और बाकी जो है जनरल के लिए, ठीक है। मगर प्रमोशन कब होता है? जब आपका जो कैडर में जब कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिकली 75% से ज्यादा नहीं होगा, तब उस केस में प्रमोशन होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। और रिजर्वेशन में बता दिया, ओबीसी एसटी एससी 49%, 49.5%, और बाकी जो जनरल से है। तो तीनों में, चाहे लिमिटेड डिपार्टमेंटल की, चाहे सिलेक्शन की, चाहे नॉन सिलेक्शन, नॉन सिलेक्शन जो सीनियरिटी बेसिस में है। दिल्ली स्टाफ यहां पर दे दिया, रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स ऑफ दिल्ली रेटेड स्टाफ। तो दिल्ली रेटेड स्टाफ में बेसिकली यहां पर तो इट मे नॉट बी प्रैक्टिकल टू अप्लाई द रिजर्वेशन ऑर्डर्स, ओके, इन रेस्पेक्ट ऑफ डेली रेटेड स्टाफ। It should be ensured that persons belonging to the scheduled caste
शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसीज आर रिक्रूटेड इन सच मैनर एज देयर ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन। जैसे यहाँ पर बोलना है कि उनका ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन वो जो परसेंटेज है उससे कम नहीं होगा, जो स्पेसिफिक परसेंटेज है, जैसे एसटी 7.5% है, कि एससी 15% है, कि ओबीसी 27% है, ये जो परसेंटेज से कम नहीं होना चाहिए उनका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। रिजर्वेशन इन एडहॉक प्रमोशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ एडहॉक प्रमोशंस कुछ कंडीशंस है, बेसिकली एडहॉक प्रमोशंस नहीं होता है एज ए मैटर, ये दे दिया एडहॉक प्रमोशंस शुड बी अवॉइडेड, एडहॉक प्रमोशंस को अवॉइड किया जाता है, मगर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस एक्चुअली एडहॉक प्रमोशन इज देयर। सो व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस? सपोज पेंडिंग, यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कोर्ट केसेस, ऐसा कुछ कोर्ट केस है और उसमें इट मीन्स प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, कि कोई सीनियरिटी बेसिस में कुछ प्रोट्रैक्टेड सीनियरिटी डिस्प्यूट्स है, कुछ सीनियरिटी बेसिस में कुछ डिस्प्यूट्स है, वो जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी उसको फाइनल नहीं कर पा रहा है। नॉन फ्रेम, जो रिक्रूटमेंट रूल को ठीक से फ्रेम नहीं किया गया है, कि कोई डायरेक्ट अनफोर्सिन डिले, सपोज डायरेक्ट इन रिक्रूटमेंट में अनफोर्सिन डिले माने कोई अनिश्चितता है, अभी तक कोई फाइनल नहीं हो पा रहा है, कि ऐसे जो डीपीसी होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो भी फिक्स नहीं हो पा रहा है, जो कन्वेनिंग होता है डीपीसी। तो ऐसे कुछ मैटर में चाहे पेंडिंग ऑफ कोर्ट केसेस प्रमोशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, कि जो सीनियरिटी है उसमें कुछ डिस्प्यूट्स है, रिक्रूटमेंट रूल्स ठीक से फ्रेम नहीं किया गया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो भी क्लियर नहीं है, वो अनफोर्सिन है, कोई अनिश्चितता से चल रहा है, और डीपीसी भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द अपॉइंटिंग। इस मैटर में क्या है, एडहॉक प्रमोशन दिया जाता है, कुछ कंडीशंस में दे दिया। ठीक है। In cases where reservation orders for SC and STs are applicable, the number of vacancies falling to the share of SC and STs would be the same if the vacancies were to be filled on regular basis। तो यहाँ पर क्या है, जैसे रेगुलर बेसिस में रेगुलर वैकेंसीज में जैसे रिजर्वेशन होता है, तो यहाँ पर भी वैसे ही रिजर्वेशन होगा जैसे एडहॉक प्रमोशन में। ओके, इन केसेस वेयर रिजर्वेशन ऑर्डर्स फॉर एससी एंड एसटी आर एप्लीकेबल, रिजर्वेशन ऑर्डर्स आर एप्लीकेबल, द नंबर ऑफ वैकेंट, जो एडहॉक प्रमोशन होगा, जितना वैकेंट है, जितना हम इट मींस एडहॉक बेसिस में प्रमोशन देंगे, उसमें रेगुलर बेसिस में वो वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा। रेगुलर बेसिस में जैसे रिजर्वेशन है वैसा ही लागू होगा। नॉन सिलेक्शन, सिंस एडहॉक प्रमोशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन सिलेक्शन, नॉन सिलेक्शन में बता दिया सीनियरिटी, लेंथ ऑफ द सर्विस के हिसाब से। तो ऑल द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स covered in the relevant seniority list within the total number of such vacancies against which ad hoc promotions are to be made should be considered। तो ये तो बहुत कॉमन है, क्योंकि नॉन सिलेक्शन बेसिस में सीनियरिटी बेसिस में होता है, तो जो जोन ऑफ कंसिडरेशन होगा उसमें वैसा ही शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को वहां पर भी वैसे ही रखा जाएगा। should be considered in the order of their general seniority as per the gradation list on the basis of seniority come fitness and if they are not adjudged unfit। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज नॉन सिलेक्शन बेसिस में वैसे ही सीनियरिटी बेसिस में होगा, तो वो तो एज यूजुअल रिजर्वेशन रहेगा, तो एससी एसटी तो अलग, उनका तो वैसा ही सीनियरिटी बेसिस में उनको एडहॉक प्रमोशन दिया जाएगा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो फिट है। कभी कभी कुछ पोस्ट में फिटनेस भी जरूरत होता है, तो यदि वो फिट है तो उनका कैटेगरी में जैसे रिजर्वेशन है, जैसे सपोज एसटी में 7.5% है कि एससी में 15% है, ठीक है, वो एज यूजुअल वैसे ही उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ SC ST कैंडिडेट्स फाउंड फिट विद इन द रेंज ऑफ एक्चुअल वैकेंसी, अच्छा सपोज ये एक्चुअल जो SC ST सपोज क्या है, जो एडहॉक प्रमोशंस होगा, सपोज इतना मिलना चाहिए, सपोज एससी 3 लोगों को मिलेगा, सपोज माई एग्जांपल में कि एसटी में सपोज 2 लोगों को मिलेगा, मगर इतना वो नहीं है एलिजिबल, वो फिट नहीं है। एक्चुअली फिटनेस एक होता है, तो वो फिट नहीं है। एससी 3 को मिलेगा कि एसटी 2 को मिलेगा, मगर अभी उतना कैंडिडेट नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये सीनियरिटी बेसिस में हो रहा है, तो उस बेसिस में क्या होगा, गोइंग डाउन द सीनियरिटी लिस्ट, तो नीचे में जाएंगे, नीचे से लाएंगे, क्योंकि जो ऊपर में है एससी एसटी कैटेगरी में इतना लोगों को फिलअप किया जाएगा, SC3 ST2, मगर उतना सीनियरिटी बेसिस में उतना लोग फिट नहीं है,
है भी वो फिटनेस भी नहीं है, उनका फिटनेस देखा जाता है, तो तब हम क्या करेंगे, सीनियरिटी लिस्ट के नीचे में आ जाएंगे। ओके, तो उनको एडहॉक बेस से ही ये सीट को फिलअप किया जाएगा। ठीक है। When regular promotions are made subsequently, तो जब अच्छा एडहॉक मींस एक टेम्पररी पीरियड के लिए प्रमोशन दिया जाएगा। जब रेगुलर प्रमोशंस होगा तो रिवर्स ऑर्डर में, जैसे रिवर्स ऑर्डर में सबको देखिए, रिवर्स ऑर्डर में फिर रिवर्ट कर दिया जाएगा उनका पेरेंट पोस्ट को, क्योंकि एडहॉक जो है वो प्रमोशन जो मिलता है वो टेम्पररी पीरियड के लिए मिलता है, ओके, परमानेंट के लिए नहीं मिलता है। तो जब रेगुलर प्रमोशन हो जाएगा उसी पोस्ट में, तो बेसिकली रिवर्ट कर दिया जाएगा। तो रिवर्ट जो होगा रिवर्सन से होगा, ओके, रिवर्स ऑर्डर में होगा। ठीक है, वो रिवर्सन ऑफ द एडहॉक अपॉइंटेड शुड टेक प्लेस स्ट्रिक्टली इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, माने जूनियर मोस्ट जो है उसको फर्स्ट रिवर्ट किया जाएगा। रिवर्सन मींस जो जूनियर मोस्ट है उसको फर्स्ट रिवर्ट कर दिया जाएगा। और यहां पर जो रिवर्सन होगा, जो यहां पर कोई स्पेशल कंसेशंस नहीं है एससी एसटी कैंडिडेट्स को, नो स्पेशल कंसेशंस आर टू बी गिवन टू एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ सच रिवर्सन। ठीक है, वो फिर उनको पेरेंट पोस्ट को भेज दिया जाएगा, उनका पेरेंट पोस्ट को, मगर जो रिवर्सन ऑर्डर में होगा, रिवर्सन मींस फर्स्ट जो जूनियर मोस्ट है उसको उसका पेरेंट पोस्ट को रिवर्ट किया जाएगा वैसे ही। ओके, मगर यहां पर कोई जो रिवर्सन जब होगा उनका पेरेंट पोस्ट को, यहां पर कोई कंसेशंस नहीं होगा एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो नीड फॉर मेंटेनिंग एनी सेपरेट फॉर्मल रजिस्टर और रोस्टर रजिस्टर फॉर एडहॉक प्रमोशन। ये एडहॉक प्रमोशंस के लिए कोई सेपरेट फॉर्मल रजिस्टर नहीं चाहिए, कि कोई रोस्टर रजिस्टर नहीं चाहिए। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ डी रिजर्वेशन, कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ रिजर्वेशन एटसेट्रा विल आल्सो नॉट बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ एडहॉक अपॉइंटमेंट। सपोज जहां पर ये मजा बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। जो डी रिजर्वेशन, मैंने रिजर्वेशन नहीं था, कॉन्सेप्ट ऑफ डी रिजर्वेशन, कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ रिजर्वेशन एटसेट्रा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा एडहॉक अपॉइंटमेंट्स में। जैसे फर्स्ट डी रिजर्वेशन था, उसको फिर कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया रिजर्वेशन को, ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा एडहॉक अपॉइंटमेंट्स में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डी रिजर्वेशन समझ लो, रिजर्वेशन नहीं था तो डी रिजर्वेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे रिजर्वेशंस को, ये सब एडहॉक अपॉइंटमेंट्स में नहीं होगा। However, a simple register called ad hoc promotions register may be maintained for different categories of post for which ad hoc appointments are made to facilitate a record being kept of the ad hoc appointments and for ensuring reversion in the proper order on regular promotions। तो ये है, तो बेसिकली एक सिंपल रजिस्टर होगा। सो जो डिफरेंट पोस्ट के लिए बेसिकली जो एड हॉक अपॉइंटमेंट्स है वो मेंशन वो कर रहेगा, और उसके बेसिस में जब रेगुलर प्रमोशंस हो जाएगा वैसा ही रिवर्सन स्टार्ट हो जाएगा जूनियर मोस्ट से। ठीक है, सिंगल वैकेंसी है, रिजर्वेशन इन केस ऑफ ए सिंगल वैकेंसी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केसेस वेयर ओनली वन वैकेंसी, ये देखिए ओनली वन वैकेंसी ऑकर्स इन द इनिशियल रिक्रूटमेंट ईयर्स, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, एंड द करेस्पॉन्डिंग रोस्टर पॉइंट हैपेंस टू बी फॉर ए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इट शुड बी ट्रीटेड एज ऑन फर्स्ट जो है इनिशियल रिक्रूटमेंट ईयर में यदि एक वैकेंसी आ जाता है, एक वैकेंसी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल रिक्रूटमेंट ईयर में, तो वो जो पोस्ट है वो अनरिजर्व रहेगा, वो अनरिजर्व रहेगा, मगर एंड फील्ड अकॉर्डिंगली एंड द वो रिजर्वेशन कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड द रिजर्वेशन कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट 3 रिक्रूटमेंट ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है यदि वन वैकेंसी क्रिएट होता है इनिशियल रिक्रूटमेंट ईयर में, और वहां पर एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग रोस्टर पॉइंट हैपेंस टू बी फॉर, तो रोस्टर पॉइंट तो रहेगा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, मगर फर्स्ट उसको अनरिजर्व कर दिया जाएगा और फिल कर दिया जाएगा, और जो रिजर्वेशन है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कितना ईयर के लिए, 3 इयर्स के लिए रिजर्वेशन को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। मगर अभी जो इनिशियल रिक्रूटमेंट ईयर में जो एक वैकेंसी था उसको अनरिजर्व, उसको यूआर डिक्लेयर किया जाएगा, ये जो इनिशियल रिक्रूटमेंट ईयर में। ओके, और एससी एसटी रिजर्वेशन तो एज यूजुअल उनका भी रोस्टर पॉइंट है, तो बेसिकली जो नेक्स्ट 3 इयर्स में रिजर्वेशन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर भी एक एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा। इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स इवन इफ देयर इज ओनली, सब्सिक्वेंट ईयर में यदि वन वैकेंसी आ गया तो इसको रिजर्व किया जाएगा, क्योंकि इनिशियल रिक्रूटमेंट ईयर में जो वैकेंसी था उसको अनरिजर्व कर दिया गया, तो बेसिकली रिजर्वेशन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कितना ईयर के लिए, 3 इयर्स के लिए। तो यहां पर जो सब्सिक्वेंट ईयर है नेक्स्ट ईयर में यदि अगेन वन वैकेंसी है तो इट शुड बी एज रिजर्व्ड अगेंस्ट द
carried forward reservation from the initial recruitment year, and a scheduled caste or scheduled tribe candidate, if available, should be appointed against that vacancy. Okay, although it may happen to be the only vacancy in that recruitment year. तो ये भी यदि subsequent year में again one vacancy है तो वो रिजर्व रहेगा, तो वहां पर SC/ST कैंडिडेट को फिल किया जाएगा. तो ये सिंगल वैकेंसी आपको याद रखना है. यदि इनिशियल रिक्रूटमेंट ईयर में एक वैकेंसी है तो इसको अनरिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाएगा और रिजर्वेशन को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा 3 इयर्स के लिए. सपोज सब्सिक्वेंट ईयर में अगेन वन वैकेंसी है तो उसको वो रिजर्व रहेगा, वो वहां पर SC/ST कैंडिडेट को दे दिया जाएगा. ठीक है, वो पोस्ट को. ठीक है, ऐसे कैरी फॉरवर्ड होगा 3 इयर्स तक. यहां पर देखिए, इफ ए सिंगल वैकेंसी फॉल्स at a reserve point for SC/ST and is filled by SC/ST candidates on the basis of own merit or seniority, it need not be treated as unreserved and reservation should not be carried forward. अच्छा, यदि सिंगल वैकेंसी है, ये देखिए, ये सिंगल वैकेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ सिंगल वैकेंसी फॉल्स रिजर्व पॉइंट में SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, और वो चाहे वो SC/ST कैंडिडेट वो जनरल मेरिट में किस सीनियरिटी बेसिस में वो पोस्ट को ले लिया, ये नहीं कि वो अनरिजर्व में जाएंगे, ऐसा नहीं, वो वही रिजर्व रहेगा. क्योंकि सिंगल वैकेंसी जो है वो SC/ST के लिए है, वो रिजर्वेशन है. चाहे वो जो कैंडिडेट है SC/ST का, वो चाहे जनरल मेरिट लिस्ट में आएगा तो हम उसको अनरिजर्व नहीं करेंगे, वही रिजर्व कैटेगरी में देकर दे देंगे और उसको कैरी फॉरवर्ड, रिजर्वेशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा. समझ में आ रहा है? और एक दिया है, फर्दर इफ ए सिंगल वैकेंसी फॉल्स एट ए रिजर्व पॉइंट फॉर SC/ST एंड इज फिल्ड बाय कैंडिडेट ऑफ अदर रिजर्व कम्युनिटी. सपोज इसको कोई अदर रिजर्व कम्युनिटी फिल कर देता है. सपोज वो रिजर्व है SC/ST के लिए, मगर कोई अदर रिजर्व कम्युनिटी वो पोस्ट में एक्चुअली उसको रिक्रूटमेंट दे दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन मेरिट और सीनियरिटी, एज द केस में बी, द वैकेंसीज विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व and treated as if it is filled by general category candidate and the vacancy also should be carry forward. तो यहाँ पर वो तो कॉमन चीज है. सपोज वो रिजर्वेशन था SC/ST के लिए, सपोज अदर कोई रिजर्व, सपोज OBC को दे दिया गया वो पोस्ट को, तो वो एक्चुअली यदि OBC को दे दिया गया, SC/ST के लिए रिजर्व था, रिजर्व पॉइंट फॉर SC/ST, बट ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला तो OBC को दे दिया गया, वो अनरिजर्व होगा, वो अनरिजर्व होगा और बेसिकली जो रिजर्वेशन है उसको फिर कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा. फिर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ईयर में वो जो रिजर्व कैटेगरी है उनको ही वो हिसाब से उनको वो पोस्ट दे दिया जाएगा. ठीक है. टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स जो होता है रिजर्वेशन, बेसिकली उनका काम 45 डेज और मोर. तो बेसिकली आपको टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स में मिनिमम जो वो काम करेंगे 45 डेज और मोर होना चाहिए, तब उनको रिजर्वेशन मिलेगा. ओके, ये टेम्पररी अपॉइंटमेंट में. ये एक है कॉन्सेशन इन प्रमोशंस विद इन ग्रुप ए, देयर इज नो रिजर्वेशन. ये आपको याद रखना है. इन द केस ऑफ प्रमोशन बाय सिलेक्शन फ्रॉम ए ग्रुप ए पोस्ट टू अनदर ग्रुप ए पोस्ट, तो वन ग्रुप ए पोस्ट टू अनदर ग्रुप ए पोस्ट, बेसिकली नो रिजर्वेशन. इन केस ऑफ सिलेक्शन में बोला था, सिलेक्शन मीन्स अप्राइजल, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट. वो सिलेक्शन केस में एक्चुअली ग्रुप ए टू ग्रुप ए पोस्ट को ऐसा कुछ रिजर्वेशन नहीं है, मगर यहां पर दे दिया. व्हेन प्रमोशन बाय सिलेक्शन इज मेड फ्रॉम ए ग्रुप ए पोस्ट टू ग्रुप ए पोस्ट कैरिंग ग्रेड पे ऑफ रुपीज 8,700 और लेस, तो वही ग्रुप ए टू ग्रुप ए पोस्ट, अगर जो ग्रेड पे है रुपीज 8,700, जो जीपी है वो 8,700 और लेस है. The scheduled caste and scheduled tribe officers who are senior enough in the zone of consideration for promotion so as to be within the number of vacancies for which the select list has to be drawn up would be included in that list, provided they are not considered unfit for promotion. Their position in the select list would however be same as assigned to them by the departmental promotion committee on the basis of the record of service. तो ये है. तो यहाँ पर जो सिलेक्शन बेसिस में है वो रहेंगे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ऑफिसर्स, जो बेसिकली जोन ऑफ कंसिडरेशन में वो रहेंगे, ही बोल रहा है, जोन ऑफ कंसिडरेशन में रहेंगे. और वहां पर वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी जो है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सर्विस वो एक सिलेक्शन लिस्ट एक प्रिपेयर करेगा. ऐसा नहीं कि वो SC/ST कैटेगरी को कंसिडर नहीं करेगा. ठीक है. तो जब बेसिकली तो रिजर्वेशन नहीं होता है ग्रुप ए टू ग्रुप ए पोस्ट,
मगर जब प्रमोशन होता है, जो सिलेक्शन होता है बेसिकली ग्रुप ए टू ग्रुप ए पोस्ट, और इसमें ग्रेड पे ये है 8700 लेस, आपको याद रखना है। यहाँ पर जो SC/ST है, यदि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी उनको सिलेक्शन करता है उनका जो सर्विस रिकॉर्ड को देखकर, क्योंकि सिलेक्शन में तो अप्राइजल, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट को देखा जाता है, कंपेयर कर दिया जाता है कि कैसा ग्रेड आपको मिला है, तो वो भी जोन ऑफ कंसिडरेशन में रहेंगे, SC/ST लोगों को रखा जाएगा। ठीक है। कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट बाय डेपुटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ये डेपुटेशन एंड ऑब्जर्वेशन रिलेटेड है। Reservations do not apply to post actually filled by the deputation or observation, but whenever a ministry or department or attached office or subordinate office etc. proposes to depute in public interest officer serving under them to a post in or under another ministry or department etc., the scheduled caste and scheduled tribe employees serving under them who are eligible to be sent on deputation should also be considered along with other eligible employees for such deputation. Actually deputation और ऑब्जर्वेशन में रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है, मैं फर्स्ट को अंडरलाइन किया है। मगर जब एक डिपार्टमेंट से और एक डिपार्टमेंट को हम भेजेंगे डेपुटेशन में, तो वहां पर ऐसे एलिजिबिलिटी देखेंगे, जैसे हम नॉर्मल SC/ST यहाँ पर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एम्प्लॉय सर्विंग अंडर देम हु आर एलिजिबल ओके टू बी सेंट ऑन डेपुटेशन में भेजा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज यूजुअल विथ अदर एलिजिबल एम्प्लॉइज। मगर बेसिकली डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन में रिजर्वेशंस नहीं होता है। मगर यदि वो रिजर्व कैटेगरी का जो SC/ST पीपल वो एलिजिबल है, उनको एज यूजुअल नॉर्मल जो कैंडिडेट्स है, जो यूआर कैंडिडेट्स है कि OBC है, जैसे उनका एलिजिबिलिटी होता है वैसा उनका एलिजिबिलिटी होता है, तो उनको डेपुटेशन में भेजा जाएगा। और यहां पर दिया है वेयर द नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड ऑन डेपुटेशन और ऑब्जर्वेशन बाय एनी एम्प्लॉइंग मिनिस्ट्री और ऑफिस is fairly substantial, the employing ministry or head of office concerned should endeavor to see that a fair proportion of such post is filled by employees belonging to scheduled caste, scheduled tribes, subject of course to availability from the feeder categories of qualified persons belonging। अच्छा, ये दे दिया कि सपोज डेपुटेशंस में एक अभी डिपार्टमेंट को आ रहे हैं, तो हम देखेंगे वहां पर कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो एम्प्लॉइज है उनका मेन वो जो ठीक प्रॉपर प्रोपोर्शन में है कि नहीं। ठीक है, कैडर में सभी समय एक प्रोपोर्शनेट वे में रहना चाहिए। SC उतना होना चाहिए कि ST उतना, SC 15% कि ST 7.5%। तो ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से वो क्या करते हैं ना, जो एम्प्लॉइज को अदर डिपार्टमेंट्स में लाते हैं उसके हिसाब से बुलाते हैं और वो कॉम्पिटेंट होते हैं। मगर यदि any department want to bring some employees from other departments in the on the name of deputation, then the organization must check कि whether proper it means in proportionate manner actually the it means all categories are available or not. So on that basis actually the department actually bring the employees from other departments। ठीक है, मगर आपको याद रखना है बेसिकली डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन में ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है। एज रिलैक्सेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कभी कभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एज रिलैक्सेशन होता है। आपको मालूम है कि जैसे मैक्सिमम एज लिमिट होता है 5 years के लिए, बिलोंगिंग्स टू SC एंड ST एंड OBC के लिए 3 years, ऐसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो SC/ST के लिए 5 years और OBC के लिए 3 years, ये तो बहुत कॉमन है, इसको भी आपको याद रखना है। एज रिलैक्सेशन इन प्रमोशन, ये भी है प्रमोशन। आजकल देखिए जो वेयर एन अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 50 years इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रमोशन टू ए सर्विसर पोस्ट। ऐसे अभी बहुत कुछ प्रमोशन पोस्ट में क्या है, एज लिमिट जो होगा 50 years नहीं होगा, और वहां पर वो देखा जाता है कि आप एक पोस्ट में इतना साल काम करना चाहिए, तो ये सब होता है। तो इस केस में क्या है, ये जो एज रिलैक्सेशन प्रमोशन 50 years से ज्यादा नहीं होगा, मगर इसमें रिलैक्सेशन होता है SC एंड ST 5 years के लिए। ओके, मगर इस तरीके का रिलैक्सेशन कोई आर्डुअस फील्ड है, कोई डिफिकल्ट ड्यूटीज है, कोई ऑपरेशनल सेफ्टी एंड पैरामिलिटरी ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरीका का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। क्योंकि कभी कभी पोस्ट है, आप देखा होगा जैसे रिक्रूटमेंट होता है प्रिंसिपल्स का, तो 8 years PGT, वहां पर जो होता है 8 years PGT
आप कोई गवर्नमेंट सपोज नवोदय की केंद्रीय विद्यालय तो संगठन, इसमें यदि प्रिंसिपल आपको होना है तब आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में 8 इयर्स पीजीटी होना चाहिए, जो ग्रेड पे होता है 4800 में, इसमें 8 इयर्स काम करना चाहिए। तो वैसा ही तो वहां पर जो अपर एज लिमिट होता है 50 इयर्स होता है, मगर SC ST के लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन फॉर SC एंड STs इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो यहां पर थोड़ा एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के ऊपर देखिए, वेयर द पोस्ट इज फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, थ्रू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविजन एक होता है, द क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इज रिलैक्सेबल, द क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इज रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द UPSC in the case of candidates belongs to SC or ST, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that अच्छा, कभी कभी क्या है, ये जो एक्सपीरियंस है उसमें रिलैक्सेशन होता है SC ST कैंडिडेट्स के लिए, और वहां पर जो UPSC के लिए फंस दे दिया, तो वहां पर UPSC डिक्लेयर करता है कि ये जो एक्सपीरियंस है, जो मिनिमम एक्सपीरियंस लिया है उसमें इतना कैंडिडेट नहीं है SC ST से, तो इसीलिए एक जो एक्सपीरियंस में रिलैक्सेशन दे दिया गया, तो वो उसको डिक्लेयर करेगा, वो पूरा विथ रीजन एक्चुअली इन्फॉर्म करेगा कि इस बेसिस में एक्चुअली एक्सपीरियंस में SC ST कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दे दिया गया, क्योंकि यही एक्सपीरियंस को हम मिनिमम रखेंगे तो उसमें ज्यादा कैंडिडेट्स SC ST कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वही चीज बता दिया। और एक है, यहां पर देख लीजिए, where the post is filled by direct recruitment otherwise than through the Union Public Service Commission, Union Public Service Commission को छोड़ दीजिए, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, वहां पर भी एक्सपीरियंस में रिलैक्सेशन होता है, क्योंकि वो यही रीजन देते हैं कि जो एक्सपीरियंस है उसमें एक्चुअली इतना सफिशिएंट कैंडिडेट्स SC एंड ST नहीं है, इसीलिए ये क्वालिफिकेशन को रिलैक्स कर दिया गया। ये देखिए, द क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इज रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स belongs to the scheduled caste or scheduled tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them, the appointing authority shall require। तो ये है, तो वो देखते हैं कि सपोज जो एक्सपीरियंस है, जो रिक्विजाइट एक्सपीरियंस है, उसमें इतना कैंडिडेट्स नहीं, SC एंड ST कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, तो उस केस में वो एक्सपीरियंस में वो रिलैक्सेशन करेंगे, मगर उसको डिक्लेयर करेंगे कि रीजन द डिपार्टमेंट मस्ट गिव द रीजन, फॉर दैट रीजन एक्चुअली देयर इज रिलैक्सेशन बेसिकली ऑन एक्सपीरियंस ओनली फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो एक स्टैंडर्ड, एक एवरेज होता है, जैसे आपको बता देता हूं, जैसे जनरली 45% आप जो जोन ऑफ कंसिडरेशन में आएंगे, जो जोन ऑफ कंसिडरेशन में मिनिमम उनको 45% रखना है, ऐसे कि मिनिमम 50% रखना है, ऐसे होता है, एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है। मगर ये देखा जाता है जब इसी स्टैंडर्ड में SC ST कैंडिडेट सफिशिएंट नहीं है, इसमें रिलैक्सेशन कर दिया जाता है। ठीक है, इसी सपोज कैटेगरी में सपोज 45% है, मिनिमम 45% है, तो लिमिटेड जो LDC एग्जाम, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी एग्जाम हो, एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 45% है, मिनिमम 45% रखने से आपको जोन ऑफ कंसिडरेशन में लिया जाएगा, मगर इसी में SC ST कैंडिडेट्स इतना नहीं मिलेंगे, तो उनके लिए रिलैक्सेशन कर दिया जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट, whether by examination or otherwise, if sufficient number of SC or ST or OBC candidates are not available on the basis of the general standard to fill all the vacancies reserved for them, then candidates belong to these communities should be selected to fill up the remaining vacancies reserved for them, provided they are not found unfit for such post। तो ये है। ठीक है, मैं अभी एक एग्जांपल दिया, जो जनरल स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो वो जनरल स्टैंडर्ड यूआर के लिए, जैसे मैं बताया, मिनिमम 50% रखना चाहिए, तो अब आपको जोन ऑफ कंसिडरेशन में लिया जाएगा, पर इसमें SC ST सफिशिएंट नहीं है, SC ST कैंडिडेट्स, तो उनके लिए रिलैक्सेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ ये दे दिया, टू द एक्सटेंट द नंबर ऑफ वैकेंसीज रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस कैन नॉट बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल स्टैंडर्ड। तो वही है, यदि जनरल स्टैंडर्ड हम लेंगे, इतना कैंडिडेट हमको नहीं मिलेंगे SC ST OBC, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, उसको उसमें रिलैक्सेशन करेंगे। जैसे हम अभी बोला था कि मिनिमम 50% होना चाहिए,
आप जोन ऑफ कंसिडरेशन में जाएंगे, इसमें उतना SC ST कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, तो ये परसेंटेज को कम करना पड़ेगा और उनका पोस्ट को, जो SC ST पोस्ट को फिलअप करने के लिए। ठीक है, नो रिलैक्सेशन इन एज क्वालिफिकेशन। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई रिलैक्सेशन नहीं, क्योंकि एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क लिया जाता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ऐसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की OBC, उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। इन सच केसेस सब यूनिफॉर्मिटी रहेगा। जो मिनिमम मार्क्स है, द मिनिमम मार्क्स और ग्रेड सो प्रिस्क्राइब्ड शैल यूनिफॉर्मली अप्लाई टू ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स। तो यहां पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपको याद रखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक मिनिमम मार्क्स और ग्रेड को पैरामीटर के आकार में लिया जाता है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में अभी बताया था, कोई लिमिटेड LDC एग्जाम है और सपोज आप मिनिमम 50% रखा है कि जोन ऑफ कंसिडरेशन में जाएंगे, मगर यहाँ पर यदि 50% रखेंगे, जो हमारा SC ST शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए जो पोस्ट है वो फिलअप नहीं होगा। 50% वो जितना पोस्ट है उनको हम फिलअप नहीं कर पाएंगे, मिनिमम 50% लेंगे। तो उनके लिए क्या है, हम ये परसेंटेज को, स्टैंडर्ड को थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, तब हम SC ST पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई इन प्रमोशंस मेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस, एक फिटनेस होता है। सपोज यहां पर क्या है, वेयर देयर इज रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, या ओनली जो सीनियरिटी बेसिस प्रमोशन तो होगा, मगर आपका एक फिटनेस लेवल देखा जाता है। वेयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज हेल्ड टू डिटरमाइन द फिटनेस, तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है फिटनेस के लिए, तो इसमें भी रिलैक्सेशन होगा, क्योंकि वो फिटनेस, ऐसे तो आपका सीनियरिटी है मगर एक फिटनेस एग्जामिनेशन होगा। जैसे चाहे आर्मी जो है, डिफेंस है कि पुलिस है, ये जो डिपार्टमेंट है, यहां पर ओनली ऐसा नहीं है कि सीनियरिटी बेसिस में आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा, फिटनेस देखा जाएगा। तो जब फिटनेस का बात आएगा ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, तब एक स्टैंडर्ड फिक्स होगा। तो स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे तो उतना SC ST जो उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो पोस्ट को हम फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है, तो ये जो फिटनेस है, फिटनेस में थोड़ा रिलैक्सेशन दे देंगे उनके लिए। तो suitable relaxation in the qualifying standard in such examination should be made in the case of scheduled caste or scheduled tribe candidates. ठीक है, similar relaxation of standards should be made in favor of scheduled caste or scheduled tribe candidates in such departmental qualifying examinations for promotions also. तो अभी बताया था डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं, मगर यहां पर दे दिया द एक्सटेंट ऑफ रिलैक्सेशन इन अबव केसेस शुड बी डिसाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्सटेंट ऑफ रिलैक्सेशन इन अबव केसेस शुड बी डिसाइडेड ऑन ईच ओकेजन व्हेनेवर सच एन एग्जामिनेशन इज हेल्ड टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल रिलेवेंट फैक्टर्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज रिजर्व, द परफॉर्मेंसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स एज वेल एज जनरल कैंडिडेट इन दैट एग्जामिनेशन, द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट एंड ऑल्सो, ये सब क्राइटेरिया को देखा जाएगा कि क्या रिजर्व वैकेंसीज क्या क्या है, और SC ST कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस को जनरल कैंडिडेट्स से कंपेयर किया जाएगा, और एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस जहां पर है, फिटनेस लेवल को हम देखेंगे, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस देखेंगे, और ओवरऑल स्ट्रेंथ। कैडर में बार बार बता रहा हूं, जो कैडर है, कैडर में सभी का पार्टिसिपेशन होता है। क्या है, इस पूरा टोटल जो कैडर में एम्प्लॉइज है, जो कैडर में टोटल एम्प्लॉइज है, उसमें सभी समय SC से परसेंटेज बेसिस में होना चाहिए। जो टोटल एम्प्लॉइज है, SC 15% होना चाहिए, ST 7.5% होना चाहिए, कि OBC 27% होना चाहिए। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ को हम देखेंगे, तो ओवरऑल ये मेंटेन नहीं हो रहा है, तो जैसे हम ये जो परसेंटेज देख रहे हैं SC ST OBC के लिए नहीं हो रहा है, और इस तरीके का एग्जामिनेशन हम लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो जोन ऑफ कंसिडरेशन जब हम फिक्स करेंगे, तब हम क्या करेंगे, जो मिनिमम स्टैंडर्ड जो परसेंटेज हम लिया है कि एग्जामिनेशन में मिनिमम 50% रखना है, तो ये इसको कम करेंगे, क्योंकि SC ST OBC जो कैंडिडेट्स है, उनका जो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से वो नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्राइटेरिया को देखा जाता है, 4 क्राइटेरिया को देखा जाता है, क्या वैकेंसीज है, और शेड्यूल का उनका कंपैरिजन हम करेंगे, SC ST का जो परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे जनरल कैंडिडेट से, और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस,
और ओवरऑल कैडर में उनका जो प्रॉपर्शनेट के हिसाब से मैं बताया एसटी 7.5%, तो टोटल कैडर में जो एम्प्लॉइज है उसमें 7.5% एसटी है कि नहीं, कि एससी 15%, टोटल कैडर में जितना एम्प्लॉइज है एससी 15% है कि नहीं। तो ये सब क्राइटेरिया को देखना पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन रोस्टर, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन इज दैट नंबर ऑफ पोस्ट फिल्ड बाय रिजर्वेशन बाय एनी कैटेगरी इन ए कैडर शुड बी इक्वल टू, कोटा फिक्स होता है, शुड बी इक्वल टू द कोटा प्रेस्क्राइब्ड फॉर दैट कैटेगरी। तो वही कॉमन चीज है, जब कोई भी वैकेंसी आ जाता है तो कोटा फिक्स होता है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल है जो रिजर्वेशन बेस्ड रिजर्वेशन इज दैट नंबर ऑफ पोस्ट फिल्ड बाय रिजर्वेशन बाय एनी कैटेगरी इन ए कैडर। तो ये क्यों है, टोटल कैडर में प्रोपोर्शनेट रहेगा। जैसे टोटल कैडर में टोटल एम्प्लॉइज को हम देखेंगे कि एसटी 7.5% रहेंगे, टोटल कैडर में एससी एम्प्लॉइज 15% रहेंगे, ओबीसी 27% रहेगा, बाकी जनरल रहेगा। तो उसके हिसाब से जब न्यू पोस्ट निकलेगा तब उसके हिसाब से हम उनके लिए पोस्ट निकालेंगे। तो जब न्यू पोस्ट का रिक्रूटमेंट हो जाएगा तब हम देखेंगे फिर बैलेंस आ रहा है। जैसे चाहे एसटी एससी ओबीसी उनका जो बैलेंस होना चाहिए, जो परसेंटेज के हिसाब से, जो प्रोपोर्शन के हिसाब से वो रहेंगे। तो व्हेन ए परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज फिक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कैडर एंड द रोस्टर इंडिकेट्स द रिजर्व पॉइंट्स, इट हैज टू बी टेकन दैट द पोस्ट शोन एट द रिजर्व पॉइंट्स आर टू बी filled from amongst the member of reserve categories and the candidates belong to the general category or not। अच्छा, ये जो जैसे हमारा रिजर्वेशन, हम जो न्यू रिक्रूटमेंट अभी आ रहा है, हम देखेंगे कि एससी के लिए कितना पोस्ट होगा, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए। तो ये जो रिजर्वेशन है बेसिकली हम चेक करेंगे, रिजर्वेशन पोस्ट ऐसे निकालेंगे, जैसे रिक्रूटमेंट होने के बाद हम देखेंगे कि जो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से जो जैसे एससी एसटी ओबीसी ये कैंडिडेट्स रहना चाहिए वो है, तो उनका पोस्ट को कभी जनरल कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाएगा। जैसे एससी एसटी है उनका पोस्ट को ओबीसी को कि जनरल कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स कैन कम्पीट फॉर द नॉन रिजर्व पोस्ट। ये है जो रिजर्व कैटेगरी है वो हमारा नॉन अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारा नॉन रिजर्व पोस्ट को यूआर में चले जाएंगे। तो उसमें सपोज देखिए यूआर 10 पोस्ट है कि ओबीसी सपोज 8 है, कि एससी 3 है और एसटी 2 है। ये जो कैंडिडेट्स जो एससी एसटी कैंडिडेट्स यदि अच्छा करते हैं और ये पोस्ट को ले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पोस्ट में आ जाएंगे मार्क के हिसाब से, अच्छा परफॉर्म करेंगे और वो अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जब अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे तो उनको माना नहीं जाएगा कि वो एससी एसटी में सिलेक्शन हो गए, वो अनरिजर्व में सिलेक्शन हुए। सपोज उनका अच्छा रैंक आ गया, अच्छा जो फर्स्ट 10 रैंक्स तो यूआर होता है ना, तो अच्छा रैंक आ जाने से वो यूआर में आ जाएंगे। यदि यूआर में आ जाएंगे वो उनका जो रिजर्वेशन के लिए पोस्ट है वो अलग है, क्योंकि वो यूआर में उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये जो एससी एसटी के लिए जो जितना पोस्ट है वो रहेगा, क्योंकि उनका सिलेक्शन यहाँ पर यूआर में हो गया, कि उनका सिलेक्शन ओबीसी में हो गया, ओबीसी कैटेगरी में उनका हो गया एससी एसटी का। तो ऐसा नहीं कि उनका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो वहां पर उनका पोस्ट को माइनस कर दिया जाएगा, ऐसे नहीं होगा। So when all the roster points in a cadre are filled, the required percentage of reservation is achieved. Once the total cadre has full representation of the schedule, देखिए हम एक कैडर में देख लेंगे कि पूरा कैडर में देख लेंगे कि अभी कैडर में देख लेंगे जो टोटल एम्प्लॉइज है एससी 15% है, कि एसटी उनका जो रिप्रेजेंटेशन है 7.5% है, कि ओबीसी है 27% है। तो अभी बैलेंस हो गया, पूरा टोटल कैडर में जो टोटल एम्प्लॉइज है बैलेंस है। तो अभी जो पोस्ट निकलेगा, जो कैटेगरी में पोस्ट वैकेंट होगा, सपोज यूआर में वैकेंट होगा तो यूआर निकलेगा, कि एससी में वैकेंट होगा एससी निकलेगा, कि एसटी वैकेंट होगा एसटी वैकेंट पोस्ट निकलेगा, क्योंकि अभी बैलेंस है। अभी बैलेंस है मीन सपोज अभी बैलेंस है, सपोज यूआर कैटेगरी में अभी इतना वैकेंट हो गया तो ओनली यूआर को फिल किया जाएगा, कि एससी में अभी 3 पोस्ट वैकेंट हो गया, ये वैकेंट है अभी तो 3 पोस्ट निकलेगा एससी में। समझ में आ रही कि नहीं? तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। रोस्टर्स आर ओनली ऑन एड टू डिटरमाइन द एंटाइटलमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज विथ रिगार्ड टू द कोटा रिजर्व। तो कोटा हम देखेंगे कि रोस्टर जो है
कोटा ठीक से मेंटेन हो रहा है कि नहीं, जितना होना चाहिए हमारा, एससी इतना होना चाहिए कैडर में, एसटी इतना होना चाहिए, ओबीसी इतना होना चाहिए, जनरल इतना होना चाहिए, तो वो कोटा देखा जाता है। वहां पर सीनियर डिफरेंट मेंटेन नहीं होगा, वहां पर हम कोटा देखेंगे, बैलेंस रहेगा कि जो एसटी एससी ओबीसी जनरल उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो बैलेंस के आकार में रहेगा। ठीक है, तो द वैकेंसी बेस्ड रोस्टर्स कैन ऑपरेट ओनली टिल सच टाइम as the representation as the representation of persons belonging to the reserved categories in a cadre reaches the prescribed percentage of reservation. तो thereafter the vacancy based rosters cannot operate and vacancies released by retirement regime। तो मैं बताया अभी, जैसे आपका पूरा बैलेंस है, आगे में जो पोस्ट निकलेगा, जैसे चाहे कोई रिटायरमेंट हो गया, रेजिग्नेशन दे दिया, प्रमोशन हो गया, इस केस में जो पोस्ट निकलेगा तो हम देखेंगे किस कैटेगरी में ये हुआ। क्या जनरल कैटेगरी में रिटायरमेंट हो गया तो अभी जो न्यू रिक्रूटमेंट आएगा जनरल पोस्ट में आएगा, कि रेजिग्नेशन दे दिए ओबीसी में तो वो पोस्ट आ जाएगा न्यू रिक्रूटमेंट में, कि प्रमोशन है अभी जनरल कुछ कैंडिडेट प्रमोशन होगी, ओबीसी प्रमोशन होगी, तो उन्हीं का कैटेगरी में अभी न्यू रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वही मेंटेन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए कैटेगरी में। जैसे एससी 15% होना चाहिए, कि एसटी 7.5% होना चाहिए, कि ओबीसी टोटल कैडर में 27% होना चाहिए। नहीं है तो उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट आएगा, ये बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। जब ये पूरा बैलेंस हो जाएगा, अभी जो न्यू रिक्रूटमेंट आएगा जिस कैटेगरी में पोस्ट वैकेंट होगा उसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, there should be separate rosters for direct recruitment and promotion where reservation in promotion applies। हाँ, तो वो तो अलग है, सेपरेट रोस्टर्स रहेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अलग रोस्टर्स रहेगा, प्रमोशन के लिए अलग रोस्टर्स रहेगा, where reservation in promotion applies। While operating the roster, persons belonging to communities for whom reservation has been made but who are देखिए, while operating the roster, persons belonging to communities for whom reservation has been made but who are appointed on merit and not owing to reservation should not be shown against the reserve points। they will occupy the unreserved points। ये तो है। सपोज एसटी कैटेगरी का आदमी, उसका जो मेरिट है वो यूआर कैटेगरी का मेरिट में है, तो यदि उसका यूआर में सिलेक्शन हो जाता है तो वो अनरिजर्व पॉइंट में जाएगा। ओके, शुड नॉट बी शोन, तो ये इसको शो नहीं किया जाएगा कि रिजर्व कैटेगरी में चला गया, क्योंकि वो उसका जो सिलेक्शन हुआ, उसका जो मेरिट लिस्ट है वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से हुआ है, तो वो अनरिजर्व में जाएगा, अनरिजर्व पॉइंट्स में होगा, वो रिजर्व पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, मैनर ऑफ फिलिंग ऑफ द रिजर्व वैकेंसीज। while filling up vacancies in a year, efforts should be made to make up the shortfall of reservation for all the three categories, namely SC, ST and OBCs, subject however to the condition that total number of vacancies reserved for SC, ST and OBC is not more than। तो ये है, जब भी वैकेंसी निकलेगा तो एक कोटा मिनिमम होता है, जैसे SC, ST, OBC वो उनका जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं होगा, इसको थोड़ा ध्यान में देना है। ये वही नॉट मोर देन 50%, उनका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा SC, ST, OBC जब हम काउंट करेंगे उनका पोस्ट 50% पोस्ट से ज्यादा नहीं होगा। द सीलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन ऑन फिलिंग ऑफ रिजर्व्ड वैकेंसीज वुड अप्लाई ओनली टू द वैकेंसीज व्हिच आर इन द करेंट ईयर में। जब करेंट ईयर में वैकेंसीज आएगा तो हम 50% रिजर्वेशन को चेक करेंगे। जैसे SC, ST सपोज 200 वैकेंसीज करेंट ईयर में आया, 200 वैकेंसीज, तो उसमें 100 पोस्ट रहेगा SC, ST, OBC के लिए, 100 पोस्ट रहेगा, क्योंकि 50%, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर दे दिया है अगर बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड रिजर्वेशन विल ऑटोमेटिकली लैप्स इन द कैडर एज सून एज कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी। इसमें थोड़ा आगे में देख लेते हैं, ये बैकलॉग के ऊपर दिया है, देख लीजिए। The backlog reserved vacancies of SC, ST and OBC in case of direct recruitment and backlog reserved vacancies of SC, ST and OBC in case of promotion of earlier years would be, ये सेपरेट रहेगा। अभी एक मैं एग्जांपल दे दूंगा। जो बैकलॉग वैकेंसी है, बैकलॉग मींस जो प्रीवियस ईयर वैकेंसीज है वो अलग रहेगा करंट ईयर से, चाहे आपका रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो कि प्रमोशन हो, बैकलॉग को अलग रखा जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल देंगे।
तो वो उसको टुगेदर के आकार में नहीं लेंगे, वुड नॉट कंसीडर टुगेदर विद द रिजर्व वैकेंसीज ऑफ द ईयर इन विच दे आर फील्ड फॉर डिटरमाइनिंग द सीलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ दैट ईयर। ऐसा नहीं कि रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो बैकलॉग वैकेंसीज है, बैकलॉग अलग रहेगा, बैकलॉग रिजर्व वैकेंसीज अलग रहेगा। अभी मैं एक एग्जांपल में आपको बता दूंगा। However, backlog under carried forward reservation will automatically lapse in a cadre as soon as combined representation of reserve category in direct recruitment as well as promotion is either equal to or more than the prescribed number of reserve post in the relevant post based rosters। तो ये क्या है, जैसे आपका दोनों मिला, जैसे अभी नॉर्मल सपोज फॉर एग्जांपल नॉर्मल रिक्रूटमेंट में SC 15 है, मगर बैकलॉग में प्रीवियस ईयर का इसमें 5 था, तो ये 20 था। तो ये जब 20 अभी 20 उनके लिए जो 20 पोस्ट फिलअप हो रहा है, तो ये लाप्स हो जाएगा, बैकलॉग नहीं रहेगा। जैसे SC अभी करेंट ईयर में 15 है, बैकलॉग 5 था, और वहां पर हमारा शॉर्टफॉल भी 20 है, शॉर्टफॉल जो वैकेंसी है 20 है, ये फिलअप हो जाएगा, तो वहां पर बैकलॉग ये नहीं रहेगा, तो वो कंबाइंड होकर बैकलॉग लैप्स हो जाता है। तो उसको हम एक एग्जांपल में अभी देखेंगे। अभी देखिए यहां पर इसको देख लीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर। सपोज करेंट ईयर जो है 2020, ये करेंट ईयर है, करेंट ईयर है 2021, इसमें अभी 1000 पोस्ट आ गया। तो 1000 पोस्ट जब आ गया तो आप देख लीजिए जो ST है 1000 पोस्ट का 7.5%, SC है 15%, OBC है 27%। हो गया कि नहीं, मेंटेन हो रहा है। देखिए 1000 पोस्ट का इतना पोस्ट आ गया ना, 1000 पोस्ट, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो टोटल हो गया 1000। क्लियर। अभी चलेंगे टोटल नंबर ऑफ 1000 पोस्ट विच आर फील्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया बेसिस बाय ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया, ये कैटेगरी हो गया था, क्योंकि अभी 1000 पोस्ट अभी निकला है। अच्छा ऐसे, मगर अपॉइंटमेंट देखिए यहां पर पूरा ST अपॉइंटमेंट हो गया, मगर SC का अपॉइंटमेंट ओनली 130 रहा, तो नॉट अपॉइंटेड 20, शॉर्टफॉल्स हो गया 20। OBC 270 पोस्ट था, मगर 100 अपॉइंटमेंट हुआ, तो 170 नॉट अपॉइंटेड और शॉर्टफॉल्स हो गया। इसको देखिए शॉर्टफॉल्स को, और UR जो 505 थे उनका पूरा अपॉइंटमेंट हो गया। तो उसमें कुछ कैटेगरीज में देखिए बेसिकली SC OBC में फिलअप नहीं हुआ, नॉट अपॉइंटेड। देखिए यहां पर जो है नॉट अपॉइंटेड 20 और OBC में नॉट अपॉइंटेड 170, तो ऐसे 190 पोस्ट का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, 810 पोस्ट का अपॉइंटमेंट हो गया। अभी नेक्स्ट चलेंगे। अभी करेंट ईयर आ गया 2000, वो 2021 था, अभी करेंट ईयर आ गया 2022 आ गया, उसमें 200 वैकेंसीज आ गया, करेंट ईयर वैकेंसी। तो उसमें कैसे हम देखेंगे शॉर्टफॉल्स, प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल्स कैसे था, SC में 20 था, OBC 170 था, क्योंकि शॉर्टफॉल्स आप यहां पर देख लीजिए 27 था, अपॉइंटमेंट जिसका नहीं हुआ 1000 पोस्ट है, ये शॉर्टफॉल हो गया 20 SC OBC 170, आपको याद रखना है। तो यहां पर देखिए जब करेंट ईयर अभी 2022 में, करेंट ईयर 2022 में 200 वैकेंसी आया, मगर फर्स्ट हम शॉर्टफॉल्स देखेंगे 2021 का। शॉर्टफॉल्स तो SC 20 है, OBC 170 है, अभी 200 पोस्ट को हम उसके हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से देखेंगे। अच्छा अभी 2022 में ये पोस्ट वैकेंट हो गया, 2022 समझ कैसे वैकेंट हुआ, चाहे रेजिग्नेशन की, रिटायरमेंट की, प्रमोशन, ऐसे ST में 10 हुआ, SC में 20 हुआ, इसी ईयर में ये जो वैकेंट है 2000 करेंट ईयर में, और OBC में कुछ नहीं, UR में 170, तो ऐसे इसी ईयर में ये वैकेंट हुआ कैटेगरी के हिसाब से। सपोज जो ST 10 है, सपोज रेजिग्नेशन की, प्रमोशन की, रिटायरमेंट ऐसे हो गए, तो ऐसे ये करेंट ईयर का 200 ये दिया है ना अंडरलाइन 200 वैकेंसीज। अच्छा तो अभी हम दोनों को मिला देंगे शॉर्टफॉल्स, यहां पर 10 हो गया, 0 + 10, ये दोनों को मिला दो, 0 + 10, यहां पर हो गया 20 + 20, क्योंकि ये शॉर्टफॉल था 21 में और अभी वैकेंट हो गया 20, तो 20 + 20 ये दोनों को मिला दो, 20 20 40 हो गया, ये 170 170। ये UR में क्या है, शॉर्टफॉल्स
यूआर में क्या है, यहां पर शॉर्टफॉल्स आफ्टर आफ्टर वैकेशन ऑफ पोस्ट, आफ्टर वैकेशन ऑफ पोस्ट आप देख लीजिए, यहां पर 10 हो गया, 0 था 10 हो गया, ये 10 हो गया। शॉर्टफॉल्स आफ्टर आफ्टर वैकेशन ऑफ पोस्ट, ये जो ये है वैकेशन ऑफ पोस्ट है, तो यहां पर 40 हो गया, यहां पर 170 हो गया, तो यहां पर भी 170 हो गया, ठीक है। तो ये जनरल, क्योंकि शॉर्टफॉल्स ये नहीं था, पोस्ट वैकेटेड इन 2022 और शॉर्टफॉल्स आफ्टर वैकेशन ऑफ पोस्ट ये हो गया, तो इसको थोड़ा चेंज कर दो, ये हो गया 340, 380, 390 हो गया, ये हो गया 390 हो गया, ठीक है। अभी हम करेंट ईयर का रिजर्वेशन पॉलिसी को देखेंगे 50%। तो आप देखेंगे सपोज करेंट ईयर में 10 है, एसटी है, तो 7.5% 15 होना चाहिए। एसटी का परसेंटेज कितना है 7.5, तो 15 तो नहीं है, यहां पर ओनली 10 है, यहां पर ओनली 10 है, तो वही 10 रहेगा। और इसमें 15% हम देखेंगे करेंट ईयर का, ये करेंट ईयर का बोल रहा है, देखिए 2000 करेंट ईयर का जो 50% रिजर्वेशन हम देखेंगे, 15% है तो 200 पोस्ट वैकेंट है, तो 200 का 15% 30 है, ठीक है। यहां पर शॉर्टफॉल था 21 प्लस दिस ईयर का मिलकर 40 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 यहां पर आ जाएगा। वैकेंसीज 50% रिजर्वेशन के हिसाब से हम देखेंगे करेंट ईयर में 50% के हिसाब से, और ये 27% है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये 170 ऑलरेडी है मिलाकर 2021 प्लस प्रेजेंट, तो यहां पर 54 हो गया, तो यहां पर बाकी 100 हो गया, क्योंकि ये टोटल 200 होना चाहिए। मगर अभी रिजर्वेशन में देखिए, मैं बार बार होता है जो करेंट ईयर में आप जब चेक करोगे 50% होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी, मगर 50% नहीं हुआ, 94 हो रहा है, 94 वैकेंसीज हुई है रिजर्व, तो 6 अभी फिलअप नहीं हो रहा है, तो 50% मिनिमम 50% होना चाहिए। अभी करेंट ईयर का हम देखेंगे, तो जो 94 है वैकेंसी, अभी 6 वैकेंसीज है रिमेन है, तो उसको कैसे हम एडजस्ट करेंगे, तो उसको एडजस्ट किया जाएगा। ये तो एसटी में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एसटी तो 10 ऑलरेडी 10 था, 10 हो गया, ये इंक्लूडिंग शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल समझ रहे हो 2021 का, शॉर्टफॉल मींस 2021, ये करेंट ईयर का, ये करेंट ईयर का वैकेंसी है, दोनों को मिलाकर आफ्टर वैकेंसी ऑफ द करेंट ईयर, जो फोर्थ कॉलम है शॉर्टफॉल्स आफ्टर वैकेशन ऑफ पोस्ट, तो अभी तो एसटी के लिए जरूरत नहीं है। अभी ये जो 6 को, अभी देखिए यहां पर जो 6 है ये करेंट ईयर के हिसाब से हो गया, ये करेंट ईयर के हिसाब से सब हो गया, देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए करेंट ईयर के हिसाब, मगर यहां पर ये जो है 94 हो गया, ये जब 94 का 6 को हम ऐसे ये करेंगे, एसटी को छोड़ दीजिए, एसटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी एससी ओबीसी में एडजस्ट करेंगे उसको, क्योंकि एसटी में तो 10-10 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी हम एडजस्ट करेंगे किसमें, एससी और ओबीसी में, जो रेशियो होता है उस रेशियो के हिसाब से कर दीजिए। एससी है 15%, ओबीसी 27%, तो एससी में कितना ऐड करेंगे, ये सपोज 5 जा 9 जा हो गया, तो एससी में कितना करेंगे, टोटल कितना हो गया दोनों का 5/14 इंटू 6 है, क्योंकि 94 होने के बाद 6 है ना, तो जो 6 पोस्ट बचा है वो रिजर्वेशन कैटेगरी में 94 हो रहा है, जो 6 को हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये 6 को 15:20, 15 मीन्स 15% फॉर एससी, ओबीसी 27%, तो उसको में मिनिमम को ले आया तो 5, तो एससी में क्या है 5/14, क्योंकि दोनों को ऐड कर देंगे, 5 पार्ट्स 9 पार्ट्स, टोटल 14 पार्ट्स, तो आउट ऑफ टोटल 14 पार्ट्स एससी कितना है 5 है, तो 5/14 इंटू 6, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 15/7 मीन्स 2.1, तो एससी में 2 को ऐड कर दीजिए, और जो 4 पोस्ट है ओबीसी में ऐड कर दीजिए, तो जब ये कर देंगे तब ये 200 हो जाएगा, तब ये 200 हो गया आफ्टर मेकअप द शॉर्टफॉल्स ऑफ 6 वैकेंसीज, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये अभी ऐसे एडजस्ट किया जाता है, तो रिजर्वेशन मिनिमम 100% होना चाहिए, तो ये करेंट ईयर के हिसाब से लिया गया है, मगर आप शॉर्टफॉल को भी देखेंगे, ये शॉर्टफॉल से, ये शॉर्टफॉल से, और ये करेंट ईयर वैकेंट है, ये करेंट ईयर है, तो इंक्लूडिंग ये सब पोस्ट वैकेंट है, तो एसटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंक्लूडिंग शॉर्टफॉल वो तो 10 है, और उनका 7.5% है, 200 का 7.5% कितना है 15 होना चाहिए, तो वो तो 10 है। मगर एससी देखिए, एससी इंक्लूडिंग शॉर्टफॉल 40 है, मगर अभी हम करेंट के हिसाब से देखेंगे, करेंट के हिसाब से 15%, करेंट ईयर में कितना पोस्ट आया 200 पोस्ट, तो 200 का 15 30 है, वो 30 प्रेजेंट करेंगे। वैसे ही ओबीसी इंक्लूडिंग आपका शॉर्टफॉल 170 है,
मगर करेंट ईयर 200 पोस्ट में देखेंगे 27% है, 54। तो अभी तीनों को ऐड करने से 94 हो रहा है। तो 6 पोस्ट को हम किससे एडजस्ट करेंगे? एससी और एसटी में। और किस रेशियो में करेंगे ना? 15:27 में करेंगे। तो अभी ये आ गया आफ्टर मेकअप द शॉर्टफॉल ऑफ, अभी अभी ठीक हो गया। देखिए ये अभी 100 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वही है उसी को जो मैं डिस्कस किया उसके हिसाब से कर दिया है। ये दे दिया 6 वैकेंट। देखिए शॉर्टफॉल्स ऑफ एसटीज वाज 10 व्हिच इज लेस देन 7.5%। टोटल वैकेंसीज कितना है? टोटल वैकेंसीज जो है ना 200 है, तो 200 का 7.5% कितना है? 15 होना चाहिए। मगर अभी शॉर्टफॉल कितना है? एसटी 10 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर शॉर्टफॉल ऑफ एससी एंड ओबीसी वाज मोर देन, इससे ज्यादा है एक्चुअली शॉर्टफॉल्स, आप देख लीजिए। तो उसके हिसाब से करने के बाद हम जो करेंट ईयर है, करेंट ईयर 200 वैकेंसीज को एडजस्ट करने के बाद 94 हो रहा है रिजर्वेशन। तो 6 को हम एडजस्ट करेंगे, जो 6 को एडजस्ट करेंगे वो इसी रेशियो में करेंगे। और जो 6 वैकेंसीज है उसको जो एडजस्ट किया जाएगा वो किसके बीच में? एससी ओबीसी। और जनरली एससी के लिए 15% रिजर्वेशन है, ओबीसी 27। तो इसी रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। इसी रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 2 फॉर एससी एंड 4 फॉर ओबीसी, उसमें एडजस्ट किया गया है। देखिए ओके, तो फ्रैक्शन से उसको राउंड अप कर दिया गया। ठीक है, तो अभी देखिए 200 वैकेंसीज वही 2022 में देखिए अभी वैकेंसीज 50% ये हो गया था 200। ये जो करंट ईयर वैकेंसीज को इससे हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हम रिलीज कर दिए। अच्छा ये करंट है, ये करंट ईयर है। फील्ड अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व्ड। ठीक है, तो यहां पर दे दिया कि इतना वैकेंसी फिल हुआ, ये तो था, इसे 5 फिल हुआ, 5 फिल नहीं हुआ। ये देखिए ये फिल हुआ, ये अपॉइंटेड, ये नॉट अपॉइंटेड। यहां पर 32 था, 20 हुआ, 12 नहीं हुआ, ये सब बैकलॉग आ जाएगा। और यहां पर 58 ओबीसी था, 50, ये 8 आ गया, तो ये बैकलॉग हो गया। यही सब बैकलॉग है, ये बैकलॉग वैकेंसीज देखिए, ये 25 हो गया, इनका नहीं हुआ। समझ में आ गया? बैकलॉग वैकेंसीज, बैकलॉग वैकेंसीज ये हो गया सब, ये क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। जो जो करेंट ईयर में ये जो पोस्ट हम निकाले थे उसमें कितना ये अपॉइंटमेंट हुआ, ये अपॉइंटमेंट हुआ, ये नॉट अपॉइंटमेंट हुआ, ये जो नॉट अपॉइंटमेंट हुआ ये बैकलॉग हो गया। और शॉर्टफॉल के हिसाब से देखेंगे, सपोज यहां पर जैसे अभी शॉर्टफॉल यहां पर 5 हो गया और यहां पर क्या था 32, अभी 20 फील हुआ, 12 फील नहीं हुआ, तो ऐसे आप देखिए 20 शॉर्टफॉल हो गया। 20 क्या है? पहले 40 था, जो एससी था 40 था, माने इंक्लूडिंग करेंट ईयर वैकेंसी बैकलॉग, माने ये दोनों मिलाकर करेंट ईयर जो 2022 का और 2021 में कुछ पोस्ट फिलअप नहीं हुआ था, तो इसमें अभी कितना फिलअप हुआ? 20 हुआ, तो 20 शॉर्टफॉल हो गया। और वैसे ही ओबीसी में देखिए, ओबीसी में पहले कितना था? 170 था टोटल, जो फिल नहीं हुआ था तो 2021 में और 22 करेंट में, ऐसे 170 था, मगर अभी फिलअप कितना हुआ? 50 हुआ, तो कितना शॉर्टफॉल हो गया? 120। तो ऐसे शॉर्टफॉल देखा जाता है। और जो फिलअप इसी ईयर में 2022 में नहीं हुआ वो सब बैकलॉग हो गया। ये सब बैकलॉग है जो फिलअप नहीं हुआ। और शॉर्टफॉल अलग है, बैकलॉग अलग है। शॉर्टफॉल तो टोटल आप पहले से करके आ रहे हो, ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से चेक कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर आ गया 2023 में 200 वैकेंसीज आ गया। फिर नेक्स्ट तो उसमें ये पोस्ट वैकेंट हो गया 2023 में, जैसे एसटी से 10, एससी से 20, ओबीसी 20, ऐसे आ गया। और शॉर्टफॉल था, शॉर्टफॉल ऑफ वैकेंसीज ये था कितना हो गया? शॉर्टफॉल ऑफ वैकेंसीज 15 हो गया, क्योंकि पहले 5 था, ये बैकलॉग, ये 5 था, ये अभी 10, 15 हो गया। ये बैकलॉग में 12 था पोस्ट बैक। अच्छा कितना पोस्ट वैकेंट हो गया एससी में? 20। तो 20 मीन्स अभी कितना? देखिए यहां पर थोड़ा नजर डालिए, यहां पर शॉर्टफॉल को देखिए, यही शॉर्टफॉल को ऐड कर दीजिए। बैकलॉग इसको मत देखिए, ये इसी को देखिए, इसको नजर देखिए, बैकलॉग को देखिए, इसको देखिए 520 120। तो अभी देखिए तो वहां पर अभी पोस्ट वैकेंट हो गया 10, पहले 5 था तो 15 हो गया। तो यहां पर देखिए एससी कितना था 20 शॉर्टफॉल में,
एससी 20 था शॉर्टफॉल में, एससी कितना था 20 था। अभी देखिए अभी पोस्ट फिर वैकेंट हो गया 2023 में कितना हो गया 40। और बेस है सपोज यहां पर ओबीसी देखिए, ओबीसी शॉर्टफॉल कितना था, ओबीसी कितना था 120 था। अभी फिर ओबीसी वैकेंसी कितना हो गया 20 हो गया तो 140 हो गया। तो इसे ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज अभी ये जो वैकेंसीज आ गया 200 वैकेंसीज प्लस बैकलॉग, ये बैकलॉग मींस 2022 में ये बैकलॉग, ठीक है। ये देखिए बैकलॉग वैकेंसीज, बैकलॉग मींस ये 2022 में फिल नहीं हुआ था, नहीं इसमें हम देख रहे हैं ना, अच्छा ओके। ये बैकलॉग 2022 में फिल नहीं हुआ था, इसको अलग रखना है। और ये जो 200 पोस्ट आ गया अभी पोस्ट वैकेटेड, ये पोस्ट वैकेट हो गया 200, तो 200 प्लस ये जो बैकलॉग वैकेंसी ये अलग अलग आएगा। यहां पर देखिए टोटल वैकेंसीज इन द ईयर, तो 2023 में जो वैकेंसी है 200 प्लस बैकलॉग ये अलग अलग सेपरेट आएगा। तो अभी देखिए कितना ये आउट ऑफ 2, इसको आप देखिए इसी में रिजर्वेशन को चेक कीजिए, क्योंकि उसको रिजर्वेशन के हिसाब से होना चाहिए, करेंट ईयर का 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। तो एसटी में ये 7.5% की, मगर 7.5% से कम है, तो ये अलग अलग हो जाएगा ना, ये 10 है ये 5 है, ये बैकलॉग अलग है। ये आप देखिए बैकलॉग सब अलग है, बैकलॉग अलग है। ये शॉर्टफॉल क्या है, बैक हम मिला दिया है, जो ज्वाइन नहीं किए सब मिला दिया, ठीक है। तो यहां पर जो 40 है 28 प्लस 12 होगा, क्योंकि यहां पर जो 15% होगा, ये 30 है मगर 30 नहीं होगा। ये जो 200 है इसका 15% है ना, 15% है तो 30 नहीं होगा, 28 प्लस 12, क्योंकि बैकलॉग है ऑलरेडी 12, 2020 में फिलअप नहीं हुआ था तो यहां पर 28 होगा। और देखिए यहां पर मजा बात है, ओबीसी में बैकलॉग 8 था, तो अभी 200 में 54 है, ठीक है 54 है, क्योंकि ये दोनों को ऐड कर दीजिए। अभी 28 10 ये 62 कैसे हुआ, ये 62 नहीं होना चाहिए, ये 54 होना चाहिए, मगर 54 करेंगे तो ये तो सब टैली हो गया आराम से, ये 15 हो गया 10 प्लस 5, और ये भी 28 प्लस 12 40 हो गया, इसके साथ टैली हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये 15% करेंट ईयर में लेंगे तो 30 आएगा, मगर 30 नहीं है, बैकलॉग है ऑलरेडी 12, ये 2020 में ज्वाइन नहीं किए थे, ये 28 आएगा, मगर इसमें 54 आ रहा है। मगर अभी हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, एससी एसटी ये हो गया कहते कितना 38 मीन्स ओबीसी कितना होना चाहिए 62 होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों मिलाकर 100 होना चाहिए, क्योंकि 2023 में 200 वैकेंसीज है तो 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये आप कोई क्वेश्चन रेज करो, सर ये कैसे 62, क्योंकि ये 54 होना चाहिए, 27 अरे 27 ये तीनों मिलाकर 100 होना चाहिए। तो ऐसे अभी ये इसको जो 2022 में जो पोस्ट वैकेंट नहीं, जो पोस्ट फिलअप नहीं हुआ उसको बैकलॉग रखिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से इससे मार्किंग होता है। और द रिक्रूटमेंट ईयर में देखिए वैकेंसीज फिर 2020 में ये जो वैकेंसीज था, वैकेंसीज रिजर्व इंक्लूडिंग बैकलॉग में ये था, अभी इतना फिलअप हुआ, इतना फिलअप नहीं हुआ, तो ये बैकलॉग हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। ये इंक्लूडिंग वैकेंसीज रिजर्व इंक्लूडिंग द बैकलॉग रिजर्व वैकेंसीज ये था, तो अभी इतना फिलअप हुआ 2023 में, इतना फिलअप होने के बाद जो बाकी रहा वो बैकलॉग हो जाएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे बैकलॉग को। नॉन परमिसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ, अच्छा रिजर्वेशन कभी एक्सचेंज नहीं होगा कि एससी सपोज एसटी पोस्ट फिलअप नहीं हो रहा है उसमें हम एससी को दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओन मेरिट में यदि सिलेक्शन होता है, यहां पर थोड़ा बता देता हूं, थोड़ा सा, यदि ओन मेरिट में सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो वो अनरिजर्व में जाएंगे। सपोज उनका सिलेक्शन, सपोज एससी एसटी का सिलेक्शन हो गया यूआर में कि ओबीसी में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका पोस्ट में क्योंकि वो यूआर ओबीसी में उनका सिलेक्शन हुआ, अनरिजर्व में सिलेक्शन हुआ, कोई ओबीसी में सिलेक्शन हुआ, तो उनका पोस्ट एज यूजुअल ये रहेगा, एससी एसटी रहेगा, उससे माइनस नहीं होगा। ओन मेरिट प्रमोशन वैसा है, इन केस ऑफ प्रमोशन द इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू ओन मेरिट एज अंडर एससी एसटी कैंडिडेट्स अपॉइंटेड, यदि ओन मेरिट में प्रमोशन केस में यदि एससी एसटी कैंडिडेट्स अपॉइंटेड बाय प्रमोशन ऑन देयर ओन मेरिट एंड नॉट ओइंग टू रिजर्वेशन, वो यूआर में जाएंगे, अनरिजर्व में जाएंगे। प्रमोशन में भी
प्रमोशन में ओन मेरिट में होता है, प्रमोशन में ओन मेरिट में सिलेक्शन होगा मींस वो यूआर में जाएंगे, तो उनके लिए जो रिजर्वेशन है उसमें माइनस नहीं होगा, ठीक है। इफ एन अनरिजर्व्ड वैकेंसी अराइजेस in a cadre and there is any SC/ST candidate within the normal zone of consideration in the federal grade, such SC/ST candidates cannot be denied promotion on the plea that the post is not reserved. Such a candidate will be considered. तो ये तो है, सपोज यूआर के लिए वैकेंसी है प्रमोशन में, मगर SC/ST कोई कैंडिडेट्स इसी मेरिट में उनका वो भी सिलेक्शन हो रहा है, एक्चुअली यूआर के लिए है प्रमोशन, अनरिजर्व्ड के लिए प्रमोशन में है, मगर कुछ SC/ST कैंडिडेट्स उनका ओन मेरिट में वो इसमें आ जाते हैं यूआर में, तो वो यूआर में चले जाएंगे, उनका प्रमोशन होगा अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। SC/ST कैंडिडेट तो ये हो गया 50% रिजर्वेशन हमको लेना है, ओके। द प्रिंसिपल ऑफ यहां पर दे दिया, देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ ओन मेरिट विल अप्लाई वेदर द प्रमोशन इज मेड बाय सिलेक्शन मेथड और नॉन सिलेक्शन मेथड। तो ओन मेरिट, वो जब ओन मेरिट में सिलेक्शन होता है तो वो यूआर में जाएंगे, जो रिजर्व कैटेगरी में जो SC/ST है उन इसमें माइनस नहीं होगा। जैसे ओबीसी का सिलेक्शन, सपोज ओबीसी का सिलेक्शन अभी ओन मेरिट में यूआर में हो रहा है, तो सपोज उनका 15 पोस्ट था, तो यहां पर 2 ओबीसी का सिलेक्शन यूआर में हो गया, तो ये कम नहीं होगा, ये वही 15 रहेगा, क्योंकि ये जो 2 ओबीसी है कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन यूआर में हो गया अनरिजर्व में, तो इसमें कोई माइनस नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी के लिए जो पोस्ट 15 है उससे माइनस नहीं होगा। तो आज इतना ही है, मैं ट्राई किया इसको पूरा डिस्कशन करने के लिए, तो आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल।